Students, class 12 physics, chapter 14, last chapter, semiconductor electronics, materials, devices and simple circuits. This chapter you will study. This is last chapter in class 12, and in this chapter you will study some subtopics. Whatever subtopics you will study solids, classification of solids. You will study solids are classified on the basis of conductivity and resistivity, and also on the basis of energy band theory. After that you will study intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, doping, and extrinsic semiconductor you will study two types, p type semiconductor and n type semiconductor, and if you join p type n type semiconductor you will get diode, and application of diodes you will study. Mainly one application you will study, that is rectifier. These things you will study in this chapter. For exam point of view, PN junction diode or rectifier is very important for examination point of view. Now you can see these solids. Now classification of solids. The classification of solids on the basis of conductivity and resistivity, and on the basis of energy band theory. Now you can see classification of metals, conductors and semiconductors. This topic is given in NCERT heading. So solids you will classify solids. Solids we can classify three parts. Three parts means metals. All the metals are conductors. The metals are conductors. Insulators you will study insulator, or you can say bad conductors. And semiconductor you will study elemental semiconductor, generally germanium, Ge and silicon. These two elemental semiconductor you will study. But there are some inorganic semiconductors and also organic semiconductors. In your course, in this chapter mainly you will study application of semiconductors. Okay, so here metals, conductors, insulators, bad conductors and semiconductors you will study. First you can see classification of metals, insulators and semiconductors on the basis of resistivity and conductivity. Now on the basis of conductivity, ये कैपिटल स्मॉल सिग्मा से ये हमारा स्मॉल सिग्मा हो गया, सिग्मा से कैपिटल सिग्मा, ये कैपिटल सिग्मा है, समेशन ग्रीक लेटर है, कैपिटल सिग्मा समेशन के लिए यूज करते हैं, और स्मॉल सिग्मा कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टिविटी, और रेसिस्टिविटी के लिए ये रो यूज करते हैं, रो। तो दोनों में रिलेशन है, कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो, रेसिस्टिविटी कंडक्टिव, अगर जिसमें रेसिस्टिविटी मोर होगा तो कंडक्टिविटी लेस, या कंडक्टिविटी मोर है तो रेसिस्टिविटी लेस. तो नाउ so on the basis of classification of solids are classified on into three categories: metals, insulators and semiconductors. So now on the basis of conductivity or resistivity, relation sigma is equal to 1 by rho. So metals, first metals or conductors. The metals or conductors क्या है? Metals are those substances which allow electricity to flow are known as conductors. ऐसा substance, ऐसा materials जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, हीट फ्लो हो, उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं या मेटल्स कहते हैं. ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स. अब ये इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ द करंट. मेटल से होकर के क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ करंट इन मेटल्स. और ये रो जो है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रेंज दिया हुआ है. रो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर.
और इसका कंडक्टिविटी फॉर्मूला देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रो, तो ये क्या होगा 1 बाय 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 8 7 मीटर माइनस 1। और सेमी कंडक्टर, सेमी से नाम है, सेमी सर्किल पढ़ा है, हाफ सर्किल। और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर द सब्सटेंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लोइंग थ्रू द सब्सटेंस। तो अब इसका सेमीकंडक्टर क्या है, पार्शियली कंडक्टर। एट लो टेम्परेचर क्या एक्ट करेगा, इंसुलेटर के काम तरह एक्ट करेगा। और थोड़ा हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी energetic, electrons will start to move, electrons and holes, then they will conduct. So conductivity or resistivity of semiconductors lies between conductors and insulators. यानी ये सेमीकंडक्टर क्या है, सबस्टांस है, और ये सबस्टांस क्या हो गया, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पार्शियली कंडक्टर है, ठीक है। रेसिस्टिविटी कितना होगा, 10 टू द पावर माइनस 5 टू 10 टू द पावर 6 ओम मीटर। और सिग्मा इज इक्वल टू 10 टू द पावर, कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर माइनस 6 7 मीटर। इन दिस वे यू विल स्टडी कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स। और ये सेमीकंडक्टर्स में जो है, देन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर होल्स बोथ आर द कैरियर्स ऑफ द करंट। कंडक्टर्स में क्या है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन कैरी द करंट इन ए कंडक्टर। बट इन सेमीकंडक्टर नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में इफ वैकेंसी स्पेस क्रिएटेड इन कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज होल क्या है, होल इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निगेटिव है। कोवेलेंट बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो स्पेस क्रिएट होगा, द स्पेस क्रिएटेड इन कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज होल। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ कैरी द करंट। कंडक्टर में क्या है, आई करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर्स ऑफ द करंट। और ये सेमीकंडक्टर में क्या है, ये सेमीकंडक्टर में क्या, आई इलेक्ट्रॉन करंट प्लस ये होल करंट। यानी सेमीकंडक्टर करंट इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड होल करंट। Electron and hole both are carriers of the current in semiconductor, not only electrons. अब conductors, insulators you have read. Now you will study conductors and semiconductors. Now you will study insulators. Now insulators क्या है, the substance which does not allow electricity to flow through it is known as इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर्स। ये स्टिक क्या है, बैड कंडक्टर है। क्लॉथ क्या है, बैड कंडक्टर। वुड क्या है, ड्राई वुड क्या है, बैड कंडक्टर है। मींस इसका क्या है, रेसिस्टिविटी मोर है, कंडक्टिविटी लेस है। यानी क्या हो गया यहाँ पर, रेसिस्टिविटी क्या है 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 19 ओम। और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11 टू 10 टू द पावर 90 माइनस 19 7 पर मीटर। इस तरह से देखा। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, यू हैव सीन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड्स क्या है, वैलेंस बैंड कंडक्शन के बैंड के बीच एक गैप है, दैट इज नोन एज एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन, वैलेंस बैंड क्या है, कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, और valence band and conduction band. Now you can see here metals and conductors. A solid definition you can see, a solid in which valence band and conduction bands are partially filled. यानी valence band conduction band दोनों क्या है, partially filled है। और valence band conduction band overlap is known as metals and conductors. वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच मेटल्स में क्या है, थोड़ा सा गैप है। वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों में क्या है, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड बोथ आर पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। या कभी क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच कुछ गैप होता है या ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग अगर है, इजिली एट रूम टेम्परेचर, एट 0 डिग्री सी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम
one band to another band. इस तरह से easily electrons will move from this. You can see in the now just you will see the diagram. In the case of metals you can see there is here valence band और ये क्या हो गया conduction band. तो ये conduction band में क्या partially filled with electrons है और इधर क्या है एनर्जी है और EV एनर्जी फॉर वैलेंस बैंड और EC एनर्जी फॉर कंडक्शन बैंड. तो वैलेंस बैंड कंडक्शन के बीच में क्या है एक गैप है थोड़ा सा गैप. ये गैप को क्या कहते हैं EG कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. अब कंडक्टर में दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक क्या है थोड़ा सा गैप है वैलेंस बैंड कंडक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप है दैट गैप इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. और दूसरा केस क्या है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग किया हुआ है. अब जब हम इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं हीट देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड विल क्रॉस द गैप दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप and then it will move to the conduction band. यानी थोड़ा सा भी एनर्जी सप्लाई वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स और थोड़ा सा कंडक्शन बैंड भी क्या है पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इसको हम हीट करते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड को थोड़ा सा एनर्जी देते हैं. कैसे एनर्जी तो वार्म अप करके हीट करके या विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Then electron will move from valence band to conduction band. Then it will conduct electricity. ये दूसरा जो ओवरलैपिंग जो है यहाँ क्या हो गया ये जो पोर्शन है दिस इज ओवरलैपिंग. ये हमारा क्या हो गया कंडक्शन बैंड और ये क्या हो गया वैलेंस बैंड. तो दोनों के बीच क्या ओवरलैपिंग है. यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ क्या है जीरो है. अगर हम इलेक्ट्रॉन हीट नहीं भी सप्लाई करें देन इलेक्ट्रॉन इजीली विल मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट अप्लाइंग एनर्जी. दो पॉसिबिलिटीज हो गया. कंडक्टर्स में क्या है वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स conduction band is partially filled with electrons. There is gap between valence band and conduction band. If you supply electricity, if you supply some energy, electron will move from valence band to conduction band. थोड़ा सा ये एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की. लेकिन ये जो है ओवरलैपिंग है ये हमारा क्या होगा वैलेंस बैंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स ये कंडक्शन बैंड ये एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ कनेक्ट करना फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है जीरो है. Without supplying energy, electron can move from valence band to conduction band. It will conduct electricity. तो in this way और सेमीकंडक्टर में गैप थोड़ा सा गैप बड़ा है. इंसुलेटर में गैप क्या है बहुत लार्ज है. Now semiconductors are materials in which forbidden energy gap between filled valence band and empty conduction band क्या empty है it has no electron is very small less than 3 electron volt. यानी क्या है ये सेमीकंडक्टर में एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम सिलिकॉन. तो ये वैलेंस बैंड क्या है कंप्लीटली फिल्ड है. कंडक्शन बैंड क्या है कंप्लीटली अनफिल्ड है विथ इलेक्ट्रॉन्स. So there is very small gap between valence band and conduction band. यानी at 0 Kelvin it acts as a insulator और above 0 Kelvin it will act as a conductor. यानी low temperature पर it will act as a insulator. तो इसके भी वैलेंस बैंड कंडक्शन के बीच में थोड़ा सा गैप है. फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. What are the semiconductors? In semiconductor, valence band is completely filled, conduction band is completely unfilled, empty, and there is very small gap between valence band and conduction band, and you have to supply how much small gap? Forbidden energy gap is less than 3 electron volt. So we have to supply some energy to the electron to move from valence band to conduction band, then it will conduct electricity. Now insulators, third case. In insulators valence band
is completely वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ये इंसुलेटर में क्या है, दिस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। ये क्या है, एम्प्टी है। एंड बोथ द बैंड्स आर सेपरेटेड बाय ए फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अबाउट ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इंसुलेटर में क्या है, ये गैप जो है लार्ज गैप है, बड़ा गैप है। ये गैप जो हो गया फॉरबिडन इनर, ये क्या वैलेंस बैंड, इधर जो कंडक्शन बैंड। दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, लार्ज एनर्जी है। व्हाट आर द इंसुलेटर्स इन बैड कंडक्टर्स, तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स and conduction band is completely empty, and there is a gap between valence band and conduction band, large gap greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत लार्ज एनर्जी है, और यहाँ से कितना एनर्जी इसको सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है, classification of solids on the basis of energy band theory. So you will study metals, insulator, and semiconductor on the basis of energy band theory, definition and figure. It is asked in the board examination CBSE. So yes, thank you very much for watching. Like, share and enjoy.